Hey guys, hi to all. Today we are going to do the question and answer of chapter 7, the interview. So here we are with the very first question at page number 69. What are some of the positive views on interview? So this must be from part 1 of this chapter. Interview in the 130 years of its existence has become an inherent part of journalism. It is a useful means of communication that is at times considered to be an art, serving as a source of truth. Dennis Prain has stated that in today's world, we get to know our contemporaries through their interviews. Question number 2 is, why do most celebrities write despite being interviewed? Celebrities writers believes that interviews unduly interfere in their private lives, or we can say uh, in their privacy. They regard themselves as the victims of interviews. They claim that the interview in some way diminishes them, just like some ancient culture believed that a portrait of a person takes away his soul. Certain celebrities like V.S. Naipaul have claimed that interviews leave them wounded, while others like Rudyard Kipling have referred to it as a crime and an immoral act. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि इंटरव्यूज़ जो है वो उनकी प्राइवेट लाइफ्स में इंटरफेयर करता है, प्लस कुछ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उनका करियर जो है वो स्पॉइल हो चुका है, जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी डायरी में ऐसे ही कुछ लिखा था। और कई लोग जो ये फील करते हैं कि इंटरव्यू जो है इट्स लाइक ए क्राइम, और अगर किसी को पनिशमेंट करना देना चाहते हो तो ही और शी मस्ट बी इंटरव्यूड. So these are some different aspects, or we can say different views of different persons regarding interview. Question number 3 is, what is the belief in some primitive cultures about being photographed? So some primitive culture believe that getting oneself photographed would rob them of their souls. Next question is, what do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? Thumbprints on his windpipe means having choke or suffocation, feeling like suffocate somebody by applying pressure on his throat. Saul Willow uses this expression to refer to the pressure and discomfort felt by a celebrity while giving an interview. So sometimes we also see that if somebody is giving an interview, he or she is not comfortable with his body language or with his voice. So these are some expressions you can write in this answer, making it your own voice or making it your own notes like. So this is what thumbprints on his windpipe means, when somebody is feeling pressure or feeling like he or she is suffocating. Next question is, who in today's world is our chief source of information about personalities? Obviously the answer is interview. Interviews help us to know our contemporaries and their opinions. They serve as a means of communication between the celebrities and the audience. In this case, the interviewer is endowed with a very special power, and he becomes our chief source of information about personalities. ऑब्वियसली जब हमें किसी का इंटरव्यू अच्छा लगता है तो हम उसकी कुछ बातें जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करके चलते हैं. अगर हमें उनके एक्सपीरियंसेस देख के या सुन के या पढ़ के अच्छा लगता है तो हम उनको अडेप्ट भी करने की कोशिश करते हैं इन आवर ओन लाइफ, एंड वी कैन ऑल्सो सी द चेंजेस. तो दिस इज़ व्हाट वी कैन have an interview and have also important information regarding those person who are being interviewed. Page number 73, question number 1. Do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reason for your opinion. Obviously yes. Umberto Eco is a professor here in this chapter in Italy. Like being interviewed, he readily answers every question which is asked by Mukund Padmanabhan. In an energetic and lively manner, he does not seem apprehensive about sharing his secrets, experiences and opinions with the interviewer,
and consequently the world. There is no indication throughout the interview that he dislikes being interviewed. तो जहाँ तक हमने अम्बर्टो इको के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, तो हमें हर पॉसिबिलिटी यही बताती है कि उनको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए जो उनको मुकुंद ने पूछे. उनकी कॉन्वर्सेशन जो चल रही थी वो बहुत एनर्जेटिक थी, बहुत लाइवली थी, और उनको देखे कहीं पे भी नहीं लगा कि उन्होंने कुछ अपने सीक्रेट्स जो हैं कहीं उनको छुपाने की कोशिश की है या फिर वो शेयर नहीं करना चाहते. उनके ओपिनियंस जो थे वो सारे के सारे बहुत क्लियर थे और वो सभी के साथ अपने ओपिनियंस को शेयर भी करना चाहते थे, और उनको देख के कभी भी नहीं लगा कि वो इंटरव्यू को डिसलाइक कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हाउ डज ईको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मुकुंद Padmanabhan reiterates David Lodge's astonishment on Umberto Eco's large amount of work and how he manages to write them all. Eco replies that just like the universe has empty spaces, our lives too have a lot of empty spaces or interstices, as he calls them, whenever he saw a few moments to spare in between the two different tasks. Instead of wasting them, he uses the time to write. He even given an example of his working technique. He says that while waiting for someone to come up through the elevator, he keeps himself busy. तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें ये भी बताया है, जैसे कि डेविड लॉज का नाम जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जिनको इस चीज़ पे हैरानगी थी, जो सरप्राइज़ फील करते थे कि अम्बर्टो इको कैसे अपना हर काम जो है इतना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और लिखने का भी काम जो है उनका चलता रहता है. तो इको अपने मुकुंद और अम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू होता है उसमें यही बात बताते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है, इट इज़ फुल ऑफ एम्प्टी स्पेसेस. हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही कुछ होती है जिस पे बहुत सारी स्पेसेस जो है वो खाली होती हैं, और उन्हीं मोमेंट्स को जो लोग वेस्ट करते हैं, उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को यूज़ करके अम्बर्टो इको जो है, ही इज़ मैनेजिंग ऑल हिज राइटिंग, वट एवर ही इज़ राइटिंग, लाइक नॉवल और नॉन फिक्शनल राइटिंग्स जो वो लिखते हैं, तो वो सारा कुछ जो लिखते हैं वो एम्प्टी स्पेसेस को यूज़ करके लिखते हैं. इसी चीज़ को एक एग्जांपल से वो हमें बताना चाहते हैं. तो ये बोलते हैं कि जैसे कोई समझो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ आ रहा है, दूसरा इंसान उसके लिए वेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस हो गई. इतने मोमेंट में जब तक कोई नीचे से एलिवेटर से ऊपर के फ्लोर्स में आता है तब तक वो एक आर्टिकल अपना लिख चुके होते हैं. तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ यूजिंग हिज एम्प्टी स्पेसेस जुडिशली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? इको का जो एकेडमिक स्टाइल है लिखने का, वो कैसे डिफरेंट है? इकोज राइटिंग स्टाइल इज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्टैंडर्ड academic mode. The academicians first make a thorough research, then move on to prove their hypothesis, and finally give their conclusion on that subject. The final outcome therefore comes to as a tedious. Eco, on the other hand, tells the story of his research, including his trial and error, while the scholar usually use a very depersonalized and dull manner. Eco's style is personalized and playful in the form of a narrative. तो इको अपने आप को डिफरेंट इस तरीके से बनाते हैं कि उनको चीज़ें पढ़ना अच्छी लगती हैं, लेकिन चीज़ों को देख के उनको खुद नरेट करना, अपने स्टाइल में लिखना उनको ज़्यादा पसंद है. जबकि दूसरे इंसान जो है वो पहले क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको थॉरो रिसर्च में जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो उसके हाइपोथेसिस निकालते हैं, फाइनली वो उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, फिर उन्होंने क्या काम किया, ये बहुत कुछ जो है ये टीडियस जॉब बन जाती है. इको अपने रिसर्च में, अपनी स्टोरी में इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड को. पहले ट्राई करो, अगर एरर हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो. और जैसे बाकी स्कॉलर्स जो हैं वो यूजुअली डीपर्सनलाइज्ड टेक्निक यूज़ करते हैं, इको अपने लिखने के स्टाइल में पर्सनलाइज्ड वे जो है प्लेफुल मैनर में यूज़ करते हैं. इसी से उनका नरेटिव जो है वो डिफरेंट बन जाता है बाकियों के कंपैरेटिवली. Next question at page number 73 is, did Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? Umberto Eco considered himself an academic scholar first and then a novelist. पहले अपने आप को एक स्कॉलर मानते हैं, फिर अपने आप को एक नॉवलिस्ट मानते हैं.
ही रोट मोर स्कॉलरली आर्टिकल एज कम्पेयर टू नॉवेल्स, ज़्यादातर वो आर्टिकल्स लिखते हैं अगर हम नॉवल को कंपेयर करें तो. एंड ही अटेंडेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. According to him, he was a university professor who wrote novel on Sunday. I started writing novel by accident, he said. अम्बर्टो इको 22 ईयर्स के थे जब उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च करना स्टार्ट की कि वो किस तरीके से वो चीज़ों को नरेट करना चाहते हैं. 50 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हो गए और 50 ईयर्स में ही उन्होंने अपनी राइटिंग जो है वो स्टार्ट की. राइटिंग स्टार्ट करने के बाद उन्होंने एक यहाँ पे नॉवल लिखा है इस चैप्टर में जिसका नाम है द नेम ऑफ रोज़. उस नॉवल को लिखने के बाद उनकी इस बुक की इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई कि कुछ शॉर्ट स्पैन में ही उनके 10 to 15 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो सेल हो गई. उसी चीज़ पे मुकुंद जो है वो कॉन्वर्सेशन में, इंटरव्यू की कॉन्वर्सेशन में ये पूछता है कि व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड दिस ग्रेट सक्सेस. जबकि अम्बर्टो इको भी इस बात को नहीं जानते तो वो अपनी एक ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में बोल देते हैं कि शायद ये कोई टाइम होता है जब इतना सक्सेसफुल एक इंसान बन जाता है जिसको खुद भी नहीं पता होता. शायद यही चीज़ अगर मैंने 22 साल की उम्र में शुरू की होती या फिर 50 के बाद शुरू की होती तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं होता. लेकिन इतना मुझे भी नहीं पता कि मेरे जो नॉवल है उसको लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं. जबकि उस टाइम का जो ज़िक्र है वो ये है कि हमारा अर्थ जो है उसके ऊपर 6 बिलियन पॉपुलेशन है. तो अम्बर्टो इको अपने बातों में ये बात बोलते हैं कि वो एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो संडे को अपना टाइम निकाल के राइटिंग्स जो हैं वो किया करते हैं या फिर नॉवेल्स लिखा करते हैं, आर्टिकल्स लिखा करते हैं और वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जाते हैं. जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको समझाया ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज़. तो अम्बर्टो इको इस पे यही बात बोलते हैं. राइटली पॉइंटेड आउट दैट सक्सेस बिहाइंड द नेम ऑफ रोज़ इज़ अ मिस्ट्री. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड अ बुक्स सक्सेस और फेलियर. वन कैन मेक वाइल्ड गेसेस. Perhaps the time in history when it was written has proved favorable for its success. According to Mukund, the novel setting in the medieval past might have contributed to its success, but many novels written about the medieval past have failed to get as much success as the name of the rose has taken or got. Page number 74, question number 1. Discuss in pair or small groups. It's not that much important, so we are leaving this question. Page number 75, question number 1. If the interviewer Mukund Padmanabhan had not got the space in newspaper to reproduce this interview verbatim, he may have been asked to produce a short report on the interview with the salient point. So this question will be there in the form of a report. अगर उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया और उस इंटरव्यू को उसने एक रिपोर्ट की तरह प्रेजेंट करना होता तो कैसे होता. सो दिस इज़ अ फॉर्मेट बाय मुकुंद पद्मानभन. नाम है उसका अ चैट विथ अम्बर्टो इको जो है ये आ गया उसका टाइटल. दिल्ली सितंबर 6 और 6 सितंबर ये लिखा हुआ है, प्लेस विथ डेट. तो इस तरीके से आप रिपोर्ट का एक फॉर्मेट जो है वो लिख सकते हो. उसके बीच में उन्होंने जो बातें की वो डाल सकते हो. 3-4 पैराग्राफ्स लिख सकते हो. इसका वर्ड लिमिट हमेशा 200 से 250 होता है. 6 नंबर का जो है आपको रिपोर्ट पूछा जाता है 12th स्टैंडर्ड को, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट आता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो उसको. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट आप इसका आंसर खुद भी बना सकते हो कि अगर आपने किसी पर्सन को एडमायर करते हो, चाहे वो स्कूल में चाहे आपके नेबर में, उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसका जो रिकॉर्ड है वो आपने राइटिंग में लिखना है, तो ये कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है. विद दिस होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर आपको ये चैप्टर जो है इसमें कोई भी चीज़ें जो है मुश्किल नहीं लगी होंगी. टेक योर टाइम एंड प्रिपेयर इन अ वे
कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू ऑल।